everyone, I welcome you all on official YouTube channel of VGM ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ official YouTube channel ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ATT ਕੈਡਰ ਲਈ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਥ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਵਰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ठीक है जी, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਐਂਡ ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਏਪੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਥ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੈਥ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ MCQ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਥ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਜੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਏਪੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਚਾਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਥਿਊਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟਡ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬੇਝਿਜਕ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। देखो जी, कोई भी समीकरण है, कोई भी इक्वेशन है जी, वो दो चीजों तो मिलके बनती है। कोई भी समीकरण के अंदर अपने को दो चीजा होंदियां ने जी, की होंदियां ने, एक हुंदा जी चल, एक हुंदा पद। दो चीजा नाल बन के बनदियां ने चल ते पद। चल नूं कहंदे आ जी वेरिएबल ते पद हुंदा जी साडे कोल कांस्टेंट। ठीक है जी, चल वेरिएबल हुंदा है, पद साडे कोल कांस्टेंट होता है, ते इन्हां दोवां तो मिलके जिहड़ी है कोई ना कोई समीकरण जिहड़ी है जी बनदी है। वेरिएबल दा मतलब कि चल मतलब चलदे रहना, मतलब कि जिस चीज दी वैल्यू जिहड़ी है जी बदलदी रहंदी है, जिस दी चीज दी वेरिएबल मतलब कि बदलना, जिस चीज दी वैल्यू बदलदे रहंदी है उहनूं कहंदे आ वेरिएबल। जो कांस्टेंट रहंदा है, स्थिर रहंदा है, जिस दे मूल बदलदा नहीं है, उसनूं की कहंदे आ जी आपां कांस्टेंट कहंदे हां, पद कहंदे हां। ठीक है जी, ते देखो हुण आपां गल करनी है रेखी समीकरण दी। देखो, चल ते पद तो बनी समीकरण दी घात एक हुंदी है। जदों समीकरण दी घात एक हुंदी है, जदों समीकरण दी घात एक हुंदी है, तां उसनूं आपां कहंदे आ जी रेखी समीकरण। एक हुंदी है तां रेखी समीकरण कहंदे आ, आपां उसनूं की कहंदे आ जी रेखी समीकरण। ठीक है जी, उसनूं की कहा जाता है जी रेखी समीकरण कहा जाता है जे अपने समीकरण की घात की है जी एक है। जिवें मैं लिखता x + 7 = 9, तो आ मेरे को की है जी रेखी समीकरण है। जे मैं लिखता x² + 4 = 0, तो आ साडे कोल रेखी समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात की है जी 2 हो चुकी है, तो आ रेखी समीकरण नहीं है। अपने को रेखी समीकरण के अंदर की है जी चल दी घात की होंदी है जी एक होंदी है, तो x + 7 = 9 साडे कोल की है जी एक रेखी समीकरण है। ठीक है जी, इसनूं कहंदे आपां रेखी समीकरण। हुण देखो जी, अपने को रेखी समीकरण अलग अलग तरह होंदे हुंदे जी। आपां कहंदे आ एक चल वाले रेखी समीकरण, दो चल वाले रेखी समीकरण, तीन चल वाले रेखी समीकरण, या फिर n चलां वाले रेखी समीकरण। इस तरह के अपने को रेखी समीकरण हुंदे ने जी। एक चल वाले रेखी समीकरण का की मतलब है, एक वेरिएबल कल्ला या तो x है या सिर्फ y है। दो चलां वाले दे अंदर दो वेरिएबल होणगे, x y ले लो, a b ले लो, जो तुहानूं वधिया वर्ड लगन, p q ले लो, कुछ भी ले लो, JKL ले लो, MN, जो तुहाडा मन करे यार, S जो भी तुहाडा मन करे वो एलिमेंट तुसीं ले सकदे हो। कोई भी दो वेरिएबल ले ले, जिहदे अंदर दो वेरिएबल होणगे उसनूं कहांगे जी दो चलां वाले रेखी समीकरण। तीन चलां वाले अंदर तीन वेरिएबल x y z, p q r, l m n,
इस तरह नाल जी ए बी सी। तो 3 चलां वाले रेखी समीकरण के अंदर 3 एलीमेंट ते n चलां वाले रेखी समीकरण के अंदर की हुंदे जी n एलीमेंट हुंदे हन। ठीक है जी, कितने एलीमेंट हुंदे ने? n एलीमेंट हुंदे ने। जिन्ने हुण देखो जे समीकरण एक चल वाला है, जे एक चल वाला समीकरण है, एक चल वाले समीकरण दे हल किन्ने हुंदे ने? एक चल वाले समीकरण दा एक हल हुंदा जी, एक चल वाले समीकरण दे एक हल हुंदे ने, एक हल हुंदा है। ठीक है जी, एक चल वाला समीकरण है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो कितने सॉल्यूशन होंगे जी? 1 सॉल्यूशन होएगा। जे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे जी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली बहुत सारे हल होंगे, अनेका हल होंगे। जे एक है तो एक हल होएगा, जे एक तो वध है तो अनेका हल होंगे। उस समीकरण दे साडे कोल की है जी? अनेका हल होंगे, एक तो वध जेडे हल साडे कोल उसदे होंगे। कितने हल होंगे जी? अनेका हल होंगे। जे एक हल एक चल है एक हल, एक तो वध चल अनेका हल। इन्नी गल याद रखनी है, इस नाल रिलेटेड पेपर च प्रश्न पूछा जा सकता है जी तुहाडे तो समीकरण देके इसके कितने हल है। तो जे तुहानू उस दे अंदर सिर्फ एक वेरिएबल दिखे, x दिखे या सिर्फ कल्ला y दिखे, कल्ला a दिखे, कल्ला b दिखे, कल्ला c दिखे तो आपां की लिखांगे? इसका एक ही हल है। जे एक तो वध वेरिएबल दिखाई दे गया सिंगल समीकरण से, एक ही समीकरण के अंदर 2 वेरिएबल दिखाई देंगे तो उस दे की होंगे जी साडे कोल? उस दे अपने कोल जी अनेका हल होंगे। ठीक है जी, उस दे साडे कोल की है जी? अनेका हल होंगे। हुण वधदे हां जी आपां अगे अपनी इसी थ्योरेटिकल वर्क वाल अगे देखते हैं जी अगे किस तरह के पेपर च आपां नूं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो पहला आपां एक चल वाले रेखी समीकरण की गल करते हैं जी कि एक चल वाले रेखी समीकरण बारे किस चीज नाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, पहला आप एक चल वाला रेखी समीकरण लिखते हैं जी इत्थे एक, जिवें मेरे को 7x + 9 = 18 आ की है जी मेरे को एक चल वाला रेखी समीकरण है जी। की है जी? एक चल वाला रेखी समीकरण है तो इसके कितने हल होंगे? एक हल होएगा। कितने हल होंगे जी? एक हल होएगा। तो वो हल की है जी इसका 7x = 18 - 9 = 9 आ गया जी। x की आ गया जी 9/7। तो एक इस समीकरण का एक ही हल है जी, वो की है जी 9/7 की है जी 9/7 है जी साडे को। ठीक है जी, तो इस तरह का पेपर तो अपन प्रश्न पूछते नहीं इतना इजी कि दोनों एक चल वाला एक समीकरण देता है x + 7 = 9 है, इसका हल पता करो तो आप x = 9 - 7 कितना 2 आ गया। नहीं जी, पेपर इतना भी इजी नहीं बनता अपना ते और बुद्धू नहीं कि तुझे तो सिंपल जी चीज पूछा। ठीक है जी, पेपर से किस तरह के प्रश्न बनते हैं एक चल वाले रेखी समीकरण तो उस नाल रिलेटेड पहला जी तुसी फैक्ट लिख लो। देखो पहला फैक्ट है जी जे x = +- a है ता, जे x = +- a है ता y धुरे दे समांतर रेखा बनदी है। हाँ जी एक मिनट, y धुरे दे समांतर रेखा बनदी है। देखो जी आप एक चल वाला लीनियर इक्वेशन नु क्या कहते हैं? आप रेखी समीकरण कहते हैं। लीनियर इक्वेशन नु की कहते हैं जी? रेखी समीकरण कहते हैं। तो इन्हां दा जेड़ा ग्राफ है जी वो हमेशा की हुंदा है जी? एक रेखा हुंदा है। रेखी समीकरण दा ग्राफ की हुंदा है जी? रेखा हुंदा है, एक जरिए लाइन हुंदी है। रेखी समीकरण दा ग्राफ की हुंदा है साडे कोल? एक लाइन हुंदी है। ठीक है जी, तो पहला सी जी जे x = +- a होवे, जे x = +- a है तो वो रेखा किस तरह की हुंदी है जी? वो y धुरे दे समांतर रेखा हुंदी है। की हुंदी है जो अपने कोल? y धुरे दे समांतर रेखा हुंदी है। दूजा जी याद रखना जे y = +- a है, जे y = +- a है ता x धुरे समांतर रेखा हुंदी है। किस दे समांतर हुंदी है जी? x धुरे दे समांतर रेखा हुंदी है। ठीक है जी, तीसरा मेन तो जी दो ही ने कि x एक चल वाले रेखी समीकरण के अंदर जे मान लो अपने को एक ही समीकरण देती है तो उसने मेन जेडे दो फैक्ट है जी वो हमेशा तुसी याद रखने हैं जी कि ये जी x = 1 है, x = 1 है, a +- a तो y धुरे दे समांतर रेखा, जे y = +- a है तो अपने को क्या जी? x धुरे समांतर रेखा हुंदी है। तीजा पॉइंट याद रखना जी एक चल वाले रेखी समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चल वाले रेखी समीकरण हमेशा एक चल वाले रेखी समीकरण हमेशा
y ਤੁਰੇ ਜਾਂ x ਤੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। y ਤੁਰੇ ਜਾਂ x ਤੁਰੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਤਾਂ y ਤੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ x ਤੁਰੇ ਸਮਾਂਤਰ ਬਣੇਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ y ਤੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ x ਤੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਤੁਰਾ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੁਰਾ। ग्राफ बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 0 0। ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੂਜੇ ਚੌਥਾਈ, थर्ड क्वाड्रेंट तीजे चौथाई ते हुंदी है जी चौथे चौथाई फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, इस ते हुंदी है जी x दी वैल्यू 1, इधर तो हुंदी है जी पॉजिटिव x, इत्थे हुंदी है जी y दी वैल्यू ते केड़ा हुंदा जी धनात्मक y पॉजिटिव y। इत्थे फिर हुंदी है जी x दी वैल्यू पर की हुंदा है जी नेगेटिव x, इत्थे हुंदी है जी नेगेटिव y। ठीक है जी, इत्थे y दे ऋणात्मक मूल ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ y ਦੇ ਧਨਾਤਮਕ मूल, ਇੱਥੇ x ਦੇ ऋणात्मक मूल, ਇੱਥੇ x ਦੇ ਧਨਾਤਮਕ मूल ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ठीक है जी, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ मूल ਹੁੰਦੇ ਨੇ, y ਧਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ x ਧਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ 'ਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ 'ਚ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ y ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਚੌਥਾਈ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऋणात्मक ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ y ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ x ਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ y ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ y ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਚੌਥਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ठीक है जी, हुण आपां देखते हैं आ सी ग्राफ। हुण आपां मैं हुणे की दस्सिया जे x इक्वल प्लस माइनस a है, जे x इक्वल प्लस माइनस a है तो वो अपने कोल की हुंदा है जी y तुरे दे समांतर रेखा बनदी है। किस दे समांतर रेखा बनदी है जी y तुरे दे समांतर रेखा बनदी है। तो पेपर से देखो, पेपर से सीधा एवें पूछ सकते हैं x इक्वल 7 इज तो अपने कोल की है जी, तुसी पेपर च आ नहीं करना बिंदु, बच्चे जल्दी नाल देखते हैं तो x इक्वल 7 लिखा है तो एक बिंदु है, बिंदु कदे भी नहीं लिखना। आ ही गलती पेपर च हुंदी है। पेपर च क्वेश्चन आंदा है जे x इक्वल 7 डैश है, ऑप्शन ए दी हुंदी है बिंदु, बस जे पहली ऑप्शन दिख गई सानू तो बिंदु है ते आपां जल्दी नाल बिंदु ते टिक करता, क्वेश्चन उत्थे ही गलत हो जाना है। ते इत्थे हुंदी है y तुरे समांतर रेखा। ठीक है जी, सी है जी x तुरे समांतर रेखा, डी है जी नन। ठीक है जी, तो x इक्वल 7 की हमने दसिया जी x का मूल दिता तो y तुरे दे समांतर रेखा होगी, की होगी जी y तुरे समांतर रेखा होगी। आप बना लेने जी, वेट आप इस हुणे बना लेने, चेक कर लेने, प्रूफ कर लेने जी। अपने को है जी एक y तुरा, आ है जी x तुरा, y x। ठीक है जी, हुण देखो x इक्वल 7, मान लो इत्थे 1 2 3 4 5 6 7, हुण इत्थे x जिहड़ी है इस पूरी लाइन ते जिहड़ी आ अपने कोल पूरी लाइन बनेगी जी, आ वाली जिहड़ी लाइन बनेगी इस पूरी लाइन ते x दी वैल्यू की होएगी जी 7 होएगी। इस पूरी लाइन ते अपने कोल x दी वैल्यू की होएगी जी 7 होवेगी। आ पूरी लाइन किस नूं रिप्रेजेंट करदी है जी x इक्वल 7 नूं। तो हुण एक बिंदु नहीं बनया, अपने कोल की बन गया जी y तुरे दे समांतर रेखा बन गई, पैरेलल लाइन बन गई जी किस दे y तुरे दी। इसी तरह जे कह देन y इक्वल -3, y इक्वल -3 की है ते आ मान लेना 1 -1 -2 -3 ते y इक्वल -3 की बनेगा जी साडे कोल मान लेना इत्थे -3
y इक्वल -3 की बनेगा जी साडे कोल y इक्वल -3 बनेगा जी x तुरे दे समांतर रेखा x तुर है इस दे समांतर बन रही है तो y इक्वल -3 की है जी साडे कोल x तुरे दे समांतर रेखा है। ठीक है जी। तो आ सी जी अपने कोल इस तरह के क्वेश्चन जेडे अपने कोल एक चल वाले रेखी समीकरण दे पूछ सकते हैं। पेपर च एवें भी कह सकते हैं 3x + 9 = 0 की है। हुण तुसीं आ नहीं देखना इहदे अंदर तां एक वेरिएबल इत्थे हैगा तां आ कोई होर रेखा बन जाएगी बिंदु बन जाएगा। आ भी की है जी आ देखो आ क्या बनेगा 3x = -9 x इक्वल -3 तो x इक्वल a बन गया ना जी। तो आ भी की है जी आ बनेगी जी y तुरे दे समांतर रेखा। याद रखियो जदों भी एक चल वाला रेखी समीकरण दिख जाए पेपर से अंदर समीकरण दे अंदर सिर्फ एक ही चल दिखाई दिंदा है ना तो वो हमेशा या तो y तुरे दे समांतर होएगी या x तुरे दे समांतर होएगी भावें उस दे नाल होर कुछ भी लग्या होवे। जे वेरिएबल एक है तो वो या तो x तुरे समांतर होएगी जां जी है y तुरे दे समांतर होवेगी। ठीक है जी। हाँ जी। तो जो भी आपको कह दे कि एक चल वाला रेखी समीकरण दिखाई दे जाए तो वह हमेशा की होगा जी या तो y तुरे दे समांतर होएगा या फिर जी अपने को x तुरे दे समांतर होवेगा। ठीक है जी। आ गल हमेशा याद रखनी है पेपर से पूछा जा सकता है कि y तुरे दे समांतर है जी या x तुरे दे समांतर है। ठीक है जी। हुण देखते हैं नेक्स्ट अपने अंदर लीनियर इक्वेशन के अंदर आता सन जी अपने को एक चल वाले रेखी समीकरण की सन जी एक चल वाले रेखी समीकरण। इस तो बाद आंदे जी साडे कोल दो चलां वाले रेखी समीकरण। दो चलां वाले रेखी समीकरण अपने सिलेबस के अंदर हैं जी दो चलां वाले रेखी समीकरण। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चलां वाले रेखी समीकरण तो की पावे कि उसके अंदर दो वेरिएबल होंगे x + y = 7 x - 9y = 10 x + 2y = 35। इस तरह के जो समीकरण होंगे ने जी उन्होंने की कहते हैं जी दो चलां वाले समीकरण कहते हैं। हाँ की कहते हैं जी दो चलां वाले रेखी समीकरण कहा जाता है। इन्होंने आप की कहते हैं जी दो चलां वाले रेखी समीकरण कहते हाँ। ठीक है जी। हुण दो चलां वाले रेखी समीकरण की खासियत होंदी है जी जिहड़े अपने कोल दो चलां वाले रेखी समीकरण होंदे ने पर इन्हां दे पहली गल तां आ जी अनेकां हल होंदे ने। बहुत सारे हल जिहड़े इन्हां दे एग्जिस्ट करदे हन। अनेकां हल होंदे ने कि हन जी इन्हां दे अनेकां हल होंदे हन। हुण देखो आप पहले ही ले लेने अपने कोल x + y = 7 है मैं x 5 है y 2 है करेक्ट है x 5 y 2 एक हल आ गया। दूजा 1 + 6 1 6 तीजा 4 3 -7 14 अनेकां इनफाइनाइट सॉल्यूशन तुसी ऐसे बना सकते हो ताकि यदि दो चलां वाले रेखी समीकरण के कितने हल होंदे ने जी अनेकां हल होंदे ने की होंदे ने जी अनेकां हल होंदे हन। तो देखो दो चलां वाले रेखी समीकरण विचों किवें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला आपां देखिया सी एक चल वाले चों आई पूछ सकते हैं कि आ किस चीज नूं दर्शाउंदा है ते आपां दस दांगे जी कि रेखी समीकरण है या फिर की है। फिर हम आपां देख रहे हैं जी दो चलां वाले रेखी समीकरण। इस दे अंदर आपां देख रहे हैं पेपर च किस तरह का क्वेश्चन जिहड़ा अपने तो पूछा जा सकता है जी। पेपर च जिहड़ा है दो चलां वाले रेखी समीकरण तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जी। देखो पहला तो जी पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह पूछा। पहला एवं कह दे कि जे ax + 5y = 34 दा एक हल 7 4 है तां ए पता करो। ए दा मूल पता करना है जी ए पता करो। तां जी इत्थे अपन ऑप्शन दे देना फॉर एग्जांपल 3 4 2 1। ठीक है जी। ये अपन ऑप्शंस देते हैं उन्होंने। हुण इन्हां दे अंदरों पूछ लवे कि इन्हां विचों ए दा मूल पता करना है तो देखो जी आपां किवें करांगे। इन्हां ने की किया 7 4 इसका हल है तो x की जगह की करांगे जी 7 फिल कर दांगे 7a y की जगह जी 4 5 के 20 इक्वल क्या आ गया जी 34 7a = 34 - 20 विच इज इक्वल टू 14 ए आ गया जी मेरे कोल 14/7 2 तो ए दा मूल क्या आ गया जी 2 आ गया। ऑप्शन सी है जी साडे कोल की है जी करेक्ट बन गई ए की आ गया जी 2। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन तो अपने को इस तरह इसके अंदर पूछा जा सकता है। दूसरा आ भी पूछ सकते हैं अपन इक्वेशन देती लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर 2x
2x plus 3y equal 9 ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। 2x plus 3y equal 9 ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 1, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 1, ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 3, ਆਪਸ਼ਨ D ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 and 2। ठीक है जी, तो पूछ ले कि केड़ा इसका एक हल है, तो आप की करांगे जी ऑप्शंस पुट करके देख लांगे। जिन्हां दे अंदर दोवें बराबर आ गए वो की होएगा जी अपना हल होएगा। पहले पुट करते हैं 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 इक्वल 9 पॉसिबल है नहीं, इट मींस इसका हल नहीं है। फिर दूसरी ऑप्शन पुट की 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल 9 6 ते 3 जोड़ांगे 9 बराबर 9 आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी जी साडे कोल की है जी करेक्ट है। 3 ते 1 इसका की है जी साडे कोल एक सॉल्यूशन हैगा है। ठीक है जी, 3 ते 1 इसका की है जी साडे कोल सॉल्यूशन है। हुण देखो जी दो चलां वाले रेखी समीकरण दे नाल रिलेटेड जेडे फैक्ट है जी वो भी तुहानू दस दिन्ने आ। किहड़े फैक्ट जेडे तुहानू दो चलां वाले रेखी समीकरण नाल रिलेटेड याद होने चाहिए ने जी। हां जी, इन्हां फैक्ट नाल रिलेटेड पेपर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन जिवें है जे होवे जे x बराबर प्लस माइनस ay होवे, जे x इक्वल प्लस माइनस ay अते y इक्वल प्लस माइनस ax है। x इक्वल प्लस माइनस ay, y इक्वल प्लस माइनस ax है। ax होण तां रेखावां मूल बिंदु विचों निकलणगे। कित्थों निकलणगियां जी? मूल बिंदु विचों निकलणगियां। ठीक है जी, तां रेखावां साडे कोल मूल बिंदु दे अंदरों निकलणगियां। इफ x इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव ay and y इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव ax, then line passes through origin, then lines pass through origin। तां की है जी रेखावां origin दे अंदरों निकलणगियां। ठीक है जी, लाइन कित्थों निकल गया? ओरिजिन दे अंदरों निकल गया, मूल बिंदु दे अंदरों निकल गया जी। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल x इक्वल 9y या कहते x प्लस 7y इक्वल 0। ठीक है जी, 3x इक्वल y इक्वल 5x, y माइनस 7x इक्वल 9। देखो सिंपल जा फंडा है, जे दो वेरिएबल ने की है जी, दो वेरिएबल ने, दो वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई स्थिर अंक नहीं है, कोई कांस्टेंट अपने को नहीं है, ते दो वेरिएबल है, तो वो रेखा हमेशा मूल बिंदु विचों ही गुजरेगी। वो रेखा हमेशा दी हमेशा कित्थों गुजरेगी जी? मूल बिंदु दे विचों ही जड़ी है जी निकलेगी। ठीक है जी, वो रेखा अपने को हमेशा कित्थों निकलेगी जी? मूल बिंदु दे अंदरों निकलेगी। ठीक है जी, दूजे पॉइंट जरा अपन फैक्ट लिखना है वो है जी साडे कोल जे x इक्वल y होवे, जे x इक्वल y होवे तो रेखा मूल बिंदु विचों निकलेगी। पहली गल तां की है जी रेखा जड़ी है साडे कोल मूल बिंदु अंदरों निकलेगी। कित्थों निकलेगी जी? मूल बिंदु विचों। खासियत की है दे मूल बिंदु विचों निकलण दे नाल, मूल बिंदु विचों निकलदी है अते दोवें धुरां नाल बराबर कोण बनाउंदी है। की करदी है जी? बराबर कोण बनाउंदी है, बराबर कोण बनाउंदी है। ठीक है जी, बराबर कोण बनाउंदी है कि दोवें धुरां नाल बराबर कोण बनाएगी ते कितने डिग्री दा बनाएगी जी? 45 डिग्री दा बराबर कोण जिहड़ा जी आ बनावेगी। दोनों धुरां दे नाल की है जी बराबर दा कोण बनावेगी 45 डिग्री दा। देखो जी हुण आपां इन्हां नूं प्रूव करके देख लेने आ जी। देखो आपां इत्थे बनाने अपना ग्राफ है जी साडे कोल। एक मिनट अपना ग्राफ बना लेने आपां। दो ग्राफ बनाने आपां। आ हुंदा अपने कोल मूल बिंदु, आ है जी मूल बिंदु। ठीक है, इधर अपने कोल मूल बिंदु है जी। हुण देखो आपां की पहला की किया,
ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ x - 7y = 0 है, x - 4y ले लेना, x - 4y = 0 है अपने कोल। तो इसका ग्राफ देखते हैं आप, इस कोल अपने कोल बनया x = 4y, दूजे पासे ले गए। जे x 4 है, जे x 4 है, इतने 4 आ गया तो y कितना आएगा जी 1। जे y 2 है तो x कितना आएगा जी 8। ठीक है जी, x 4 है, आप 2 पॉइंट कट ले। देखो दोबारा तो दिखाने, x - 4y = 0 है। इतने आप अपनी मर्जी नाल वैल्यू पुट कर, मैं पुट किया x ਨੂੰ 4, x ਨੂੰ 4 पुट किया तो 4 - 4y = 0 आया मेरे को। तो इतों मेरे को y आ गया जी 0, ओ सॉरी 1, y कितना आ गया जी 1। फिर मैं किया y ਨੂੰ 2 पुट किया, जो मैं y ਨੂੰ 2 पुट किया तो x - 8 = 0, तो x की आ गया जी 8। मैं एक बार 2 पॉइंट कट ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हुण देखो y 1 तो x कितना सी 4, 1 2 3 4 आ पॉइंट बनेगा इत्थे। ठीक है जी, एक पॉइंट आ बन गया। दूजा की है y 2, आप थोड़े नजदीक ज्यादा ले लेना, दूर कर दिया। दोबारा बनाने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर आप एक और पॉइंट नहीं बनाते, आप सिर्फ दो ही साइड बनाने हैं। पहला की कहंदा x2 y2 x8, y2 इत्थे है x8 इत्थे, एक पॉइंट बनया जी अपने कोल आ वाला। दूजा की है जी y1 x4, y1 एंड x4 आ पॉइंट बनया। ठीक है जी, हुण देखो जेडी अपने कोल रेखा निकलेगी, जेडी अपने कोल आपां रेखा निकलदी है ਉਹ देखते हैं जी अपने को किवें दी निकल रही है। ਉਹ देखो जी इन्हां दे दोनों पॉइंटां ਨੂੰ मिलावांगे तो की निकलेगी, एक रेखा निकल रही है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਬਾਈਨ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀ 0 0 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अदरवाइज जी रेखा निकलेगी आ बिल्कुल ते बिल्कुल अपने ओरिजिन के अंदरों ही निकलेगी। क्यों निकलेगी मैं तुहानू दसदी हां जी। देखो जे मैं इत्थे x नू 0 फिल करा, x नू 0 फिल किया, 0 - 4y की आ गया जी 0, ते y भी क्या आ गया जी 0। इट मीनस 0 0 भी इसका एक बिंदु है। ग्राफ का पैमाना जो थोड़ा सही नहीं है, तो इस करके अपन थोड़ी दिक्कत आ रही है। 1 4 इत्थे जी बनूगा, ते जो 2 8 है जी अपने को इस तरह बनूगा कुछ। ठीक है जी, ते आ रेखा जी निकलेगी जी आ साडी अपनी के हमेशा ही ओरिजिन दे विचों निकलेगी। कितों निकलेगी जी? ओरिजिन दे विचकारों निकलेगी। दूजा सी जी मैं तुहानू कहा x = y होवे तां 45 डिग्री दा बनाएगी। ठीक है, इस दे अंदर मान लेना x = y है, अपने कोल x = जी y है, तां जे x4 y4, x1 y1, x0 y0, तां आ 0 0 हो गया, आ पॉइंट 1 1 हो गया, 2 2 3 3 4 4। इस तरह ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਧੁਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ 45 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ 45 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਵੇਗੀ। ठीक है जी, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x = y ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ x = y ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ x = ay है, मतलब कि कोई कांस्टेंट नहीं है दो चला वाली रेखी समीकरण के अंदर, तो वो रेखा भी मूल बिंदु विचों निकलेगी। तो आ सी जी दो चला वाले रेखी समीकरण रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर के अंदर अपने तो पूछे जा सकते हैं। कुछ एक अद्धा इसे थ्योरी ते आपां डिस्कस कर लेने क्वेश्चन इसे थ्योरी नाल रिलेटेड। देखो जी क्वेश्चन है तुहाडे कोल, the equation of line parallel to x axis and 3 unit above the origin। कहते उस रेखा के समीकरण पता करो जो x एक्सिस के पैरेलल होवे, जो x एक्सिस के पैरेलल होवे अते 3 यूनिट मूल बिंदु तो 3 यूनिट जिहड़ी है ऊपर होवे। मूल बिंदु तो जिहड़ा है जी 3 यूनिट जिहड़ी है ऊपर होनी चाहिए है। कितनी ऊपर होनी चाहिए जी?
3 यूनिट ऊपर होनी चाहिए है। तो वो जी अपने को बनेगी जी इन्होंने विचों दसो जी कमेंट सेक्शन से जल्दी तो जल्दी केड़ी रेखा है जी एक्स दूरी के समांतर होगी ते वाई तो जी है जी 3 यूनिट जी है ऊपर होगी ओरिजिन तो 3 यूनिट ऊपर होगी। तो देखो जी अपन के 3 यूनिट ऊपर अपने को एक्स तुर आंदा आ वाई तुर आंदा है ठीक है जी। तो तुहानू मैं पहले ही दसिया जी एक्स एक्सिस दे पैरेलल है तो मुल किसदा होएगा वाई दा। एक्स एक्सिस दे पैरेलल की होएगा पहली गल तो ये दोनों तो कट ही हो जाएंगे पिछे बचिया 2 हुण की क्या ऊपर अबव द ओरिजिन ऊपर की हुंदा y पॉजिटिव हुंदा है तो की बनेगा जी y इक्वल 3 साडे कोल करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है y इक्वल 3 जड़ी है इसदा साडे कोल आंसर बनेगा ठीक है जी। और क्वेश्चन देखते हैं सीधा आ भी पूछ सकते हैं दी ग्राफ ऑफ x इक्वल 3 इज ए द ग्राफ ऑफ x इक्वल 3 इज ए हुण इथे x दिता तो की होएगा जी पैरेलल टू y एक्सिस की होगा जी पैरेलल टू y एक्सिस होगा ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा है इफ x इक्वल टू y इक्वल 1 x इक्वल टू y इक्वल 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अपने को 2x माइनस के इक्वल माइनस 3y देन के पता करना है जी अपन के पता करना है जी के दा मूल जड़ा है जी पता करना है। तो आप मैं तो दसे x की जगह x पर दो y की जगह y पर दो ताकि बन जाएगा 2 2 जा 4 माइनस के इक्वल माइनस 3 इंटू 1 आ जाएगा जी माइनस के इक्वल माइनस 7 के आ गया जी अपने को 7 तो उसका आंसर क्या आ जाएगा जी अपने को के दा क्या आ जाएगा जी 7 आ जाएगा ठीक है जी। हाँ जी इस तो इलावा जो अपने को क्वेश्चन को में आ सकता है जी देखो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू कट दी y एक्सिस y तुरे नु किथे कटदा है एवें पूछ लिया जावे कि इस रेखी समीकरण दा ग्राफ y तुरे नु किस बिंदु ते कटदा है y तुरे नु किस बिंदु ते कटदा है। ऑप्शन है जी 0 2 ऑप्शन बी है जी 2 0 ऑप्शन सी है जी 0 1 ऑप्शन डी है जी 1 1। हुण देखो ओने गल कीती है y तुरे नु कटण दी जदों y तुरे नु कटण दी गल होगी इट मींस x की होना चाहिए 0 तो आ ऑप्शन भी कैंसल आ भी कैंसल क्योंकि इना दे अंदर x 0 नहीं है तो आ दोवें तो हो गया कैंसल जे y तुरे नु कटण दी गल कह देवे तो इट मींस की होएगा x 0 होएगा जे x तुरे नु कटण दी गल कह देवे तो इट मींस की होएगा जी y साडे कोल जेड़ा है वो की है जी 0 होवेगा ठीक है जी। तो हुण देखो ओने कहा y तुरे नु कट दिया है तो अपने कोल ए 2 पॉइंट बच गए हुण आपां देखांगे कि 0 2 बनदा है या 0 1 बनदा है। हुण इनु पुट करके देखांगे दे अंदर जे आपां पुट करिए 0 * 2 + 2 तो आ तक आ जाएगी 4 बराबर 2 4 ते 2 कदे बराबर नहीं होंगे तो ऑप्शन भी कट गई अपनी ऑप्शन नंबर सी जी है जी बिल्कुल करेक्ट है 0 + 2 = 2 2 = 2 आ गया बराबर आ रहे दोनों पासे इट मींस अपने ऑप्शन नंबर सी सही है जी कि केड़े बिंदु ते y तुरे नु कटेगा वो है जी 0 1। हुण तुसी कमेंट सेक्शन से दसो जी x तुरे नु केड़े बिंदु ते कटेगा पॉइंट ऑन विच x तुरे नु किस बिंदु ते जड़ी है आ कटेगा जी x तुरे नु आ रेखा किस बिंदु ते कटेगी इसदा आंसर तुसी जी कमेंट सेक्शन से देना है कि x तुरे नु आ बिंदु किस आ रेखा किस बिंदु ते कटेगी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल देखो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अपन नेक्स्ट पेज पे कर देना द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट दिते है जी अपन 0 0 -1 1 एंड 1 -1 हैज इक्वेशन कहंदा ओ स्ट्रेट लाइन दी इक्वेशन पता करो जेडी इना बिंदुआं विचों निकलदी वे। ऑप्शन ए है जी 2 - x = 3y ऑप्शन बी है जी y = x
ऑप्शन सी है जी 2x माइनस वाई इक्वल 0। ऑप्शन डी है जी साडे कोल x प्लस वाई इक्वल 0। हुण देखो जी तुहानू फॉर्मूला लाने की कोई जरूरत नहीं, आपां इहनू बाय ऑप्शन ही करांगे। बाय ऑप्शन देखो जे दोवें 0 है इहदे अंदर पुट करो दोनों 0। 2 माइनस 0 इक्वल 0 हुंदा है? नहीं, पहली ऑप्शन कैंसल। फिर आपां 0 0 नु इस दे अंदर पुट कीता y 0 x 0 सही हो रही है। फिर दूजी नु पुट कीता y की है 1 है, x की है -1। 1 ते -1 बराबर होंदे हैं? नहीं, आ भी कैंसल। इसी तरह इहदे अंदर चेंज करांगे तो आ भी कैंसल हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन बनेगी जी अपने को ऑप्शन नंबर डी। देखो इहनू आपां फॉर्मूले नाल भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है, बट आपां टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने लिए आपां की करना, आपां बाय ऑप्शन जी क्वेश्चन नू करने की कोशिश करांगे। तो अपने को लास्ट ऑप्शन बच गई जी x + y = 0। आ लाइन जी इन्हां तिन्नां बिंदुआं दे विचकारों अपने को निकलेगी कि इन्हां तिन्नां बिंदुआं विचकारों किहड़ी लाइन निकलेगी जी x + y = 0। तो इसका करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर डी x + y = 0। आ संजी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਚਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ एग्जाम ਦੇ ਅੰਦਰ 100% श्योरिटी है जी क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटीड क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ है जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखी समीकरणों के जोड़े। बहुत ही सौखा है जी, अब बिल्कुल ही ईजी है, पर बस इन्हों एक बार समझ आ गया उसके बाद गलती की तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखी समीकरणों के जोड़े। जो जोड़े से चीज आ जाती है ना, जोड़ा बन जाता है किसी का, तो ਉਹਦੇ अंदर क्या काफी जड़िया हो। जे सही बन गया तो वधिया है, जे गलत बन गया तो फिर बस घाटा ही घाटा है। बस वही है इस क्वेश्चन का, जे एक बार से समझ आ गया, सही तरह तुम समझ लिया तो बस बेड़े तुहाडे पारी है, किसी हाल से इसका क्वेश्चन गलत नहीं होंदा। तो इसे ध्यान नाल समझना है जी रेखी समीकरणों के जोड़े, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, देखते हैं जी व्हाट डू यू मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जोड़ा हो गया मतलब कि दो समीकरण आ गया हुण इकट्ठियां। रेखी समीकरणों के जोड़े दो चलों वाले, तो मैं पहले भी लिख देनी दो चलों वाले रेखी समीकरणों के जोड़े। देखो जी दो चलों वाले रेखी समीकरणों के जोड़े अपने को इवें हुंदे, आपां माने a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। आ की ने जी, आ की अपने को दोनों रेखी समीकरण ने, तो आ की बन गया जी अपने को दो चलों वाले रेखी समीकरण का जोड़ा बन गया जी। की बन गया जी? दो चलों वाले रेखी समीकरण का जोड़ा बन चुका है साडे कोल। की बन चुका है? दो चलों वाले रेखी समीकरण का जोड़ा। हुण देखो जी तुहानू मैं सॉल्यूशन करना सिखावांगी, सिर्फ एक मैथड सिखावांगी, बाकी एक मैथड तुहानू समझा दांगी। बाकी जिहड़ा दो चलों वाले रेखी समीकरण का हल है वो आपां बाय ऑप्शन ही करांगे। बाय ऑप्शन ही पेपर च जिहड़े इन्हां दा आपां सॉल्यूशन है वो करांगे। पेपर जे सॉल्यूशन पूछ लिया तां, क्योंकि बाय ऑप्शन से ही टाइम घट लगता है, बाकी जो आप मैथड यूज करते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है। तुहानू मैथड जरूर दसांगी, पर जो तुसीं प्रेफर किसनू करना है वो करना है जी बाय ऑप्शन। ठीक है जी, हुण आपां देखते हैं, आपां एक इक्वेशन लेने हैं जी, हल करना तरीका ही देख लेने। पहला क्वेश्चन पेपर पिछली बार पेपर से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया सी, सिंपल जिहा क्वेश्चन सी जी। उन्होंने आपां नू दो एक रेखी समीकरणों का जोड़ा देता। फॉर एग्जाम्पल मेरे को है 2x + y = 7, 3x + 2y = 8। ठीक है जी, इसका हल पता करो, हल पता करो। तो पहला तो करते हैं जी आप नॉर्मल मैथड नाल, इनू बोलते हैं आप सब्सटीट्यूशन मैथड। क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूशन मैथड नाल नहीं करते, आप करते हैं जी एलिमिनेशन मैथड नाल। एलिमिनेशन मैथड अपने को 2x + y = 7, 3x + 2y = 8। एलिमिनेशन मैथड से की करते हैं जी, आप एक नू खत्म कर देंगे हैं दोवां पासे सेम बना के। मैं की करांगी जी, इत्थे 2y है ना, मैं इत्थे भी 2y बनाने लिए ऊपर वाली नू 2 नाल गुणा करता, कोई फर्क नहीं पैना मैनू, कोई फर्क नहीं पैना। थल्ले वाली ओवें दे ओवें लिखी, ते फिर इन्हां नू घटाता, जदों इन्हां नू माइनस किया तो आ कैंसल हो गया। x = आ गया जी मेरे को 6, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 6। हुण इन्हां दोनों चों एक इक्वेशन दे अंदर x की वैल्यू भर के y कढ सकते हैं जी आपां। 2 × 6 + y = 7, y कितना आ गया जी 7 - 12 विच इज इक्वल टू -5। y कितना आ गया जी अपने को -5। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आ गया जी 6 and -5। कितना आ गया जी 6 and -5। तो आ की सन जी अपने को दो चलों वाले रेखी समीकरण जी की ने
दो चलों वाले रेखी समीकरण जिन्हों के पेपर से डायरेक्ट हल भी पूछे जा सकते हैं। हुण पेपर से जे तुसीं आ मैथड यूज करना कर सकते हो, अदरवाइज बाय ऑप्शन तुहानूं दस दिंदे आ। फॉर एग्जांपल पेपर से अपने कोल ऑप्शन हैगे ने 4 - 1 मैं वाई लिखता, 6 - 5 3 2 ते नन। इस तरह तुहाडे कोल ऑप्शन ने ते पेपर च आपां की करांगे, पहला पहले ऑप्शन च की फिल कीती, पहले क्वेश्चन दे अंदर मैं 4 ते -1 फिल करां तो की बनेगा जी 4 2 8 - 1 = 7। हाँ जी, पहले नू सैटिस्फाई कर दिया है, पर इत्थे नहीं छड्डना, दूजी नू भी चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार की हुंदा एक नू सैटिस्फाई कर दिया ते आपां टिक कर दिंदे नहीं, दूजी नू चेक कीता, दूजी दे अंदर फिल कीता, मेरे कोल बनया 12 - 2। 12 चों 2 घटावांगे 8 बचेगा, 12 चों 2 घटावांगे 8 बचेगा नहीं, कैंसल आउट। फिर आप बी चेक करते हैं, 6 2 12 - 5 = 7। 12 चों 5 गई जी 7 बचता है, बिल्कुल सही। दूजे दे अंदर चेक किया, 6 3 18 -10 8 बचता है, सेम बन रही है 7 ते 8। तो अपने को ऑप्शन नंबर बी की है जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका हल की होगा 6 ते -5 होएगा, की होएगा जी 6 ते -5 होएगा। तो पिछली बार जो डायरेक्ट सोल्यूशन के बारे क्वेश्चन पूछा सी कि इस समीकरण का हल पता करो, तो इस तरह जो क्वेश्चन आपको करना सी जी। समीकरण का हल पूछा सी तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, तो इस तरह अपने को सब्सटीट्यूशन मेथड भी है जी। पर वो जो आप प्रेफर नहीं करते, आप टाइम कंज्यूम लिए जो है सौखे तो सौखा जो क्वेश्चन करने की कोशिश करांगे जी। हुण आंदे हैं जी मेन मुद्दे की गल ते। नैक्सट टॉपिक है नेचर ऑफ सोल्यूशन, हल्लां दे गुण। आ तो पक्का आना ही आना है पेपर से, नेचर ऑफ सोल्यूशन है, दोनों बार पेपर से आया, इस बार भी आए ही आएगा। हल दे गुण, करैक्टरिस्टिक्स किस तरह दे हैं अपने कोल, ठीक है जी। हल्लां दे गुण हुण देखो जी अपने कोल 3 तरह दे हुंदे ने, कोई जो भी याद रखियो, दो चलां वाले रेखी समीकरणों के जोड़ियां दे 3 तरह के आपां हल दे गुण कर सकते हैं। केड़े केड़े जी? 3 तरह के हल अपने कोल आ सकते हैं जी। एक हल आएगा या तो एक हल होएगा, या फिर अपने कोल अनेका हल होंगे, या तीजा है जी अपने कोल कोई हल नहीं होएगा। 3 तरह के हलों के 3 तरह के हल जो अपने कोल बनते हैं जी, एक हल होएगा, अनेका हल होंगे, या अपने कोल कोई भी हल नहीं होएगा। ये 3 तरह की चीज़ां जी जी अपने कोल बनदियां हैं, ठीक है जी। हुण देखो आप देखते हैं किवें पता लगेगा। हुण आप पेपर से सोल्यूशन हल करके चेक करांगे नहीं जी, शॉर्ट अपन की ट्रिक्स ने जिन्हां तो आप इस क्वेश्चन करने ने जी। देखो एक हल लई, अनेका हल लई ते कोई हल लई ने अपने कोल 3 कंडीशनां हुंदियां ने, आप कंडीशनां ध्यान नाल तुसीं समझणियां ने। पहली कंडीशन है जी जे A1/A2, A1 A2 मैं तुहानूं पहला दस चुकी हां पिछे, डज नॉट इक्वल है जी B1/B2 दे, तां एक हल हुंदा है, की हुंदा है जी एक हल हुंदा है। इंग्लिश से कहते हैं जी यूनिक सोल्यूशन, की कहते हैं जी यूनिक सोल्यूशन कहते हाँ। दूजा है जी जे A1/A2 इक्वल है जी B1/B2 इक्वल है जी C1/C2, तां अनेका हल हुंदे ने, की हुंदे ने जी अनेका हल हुंदे हन। मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड कंडीशन है जी जे A1/A2 इक्वल है जी B1/B2 नॉट इक्वल है जी C1/C2, तो अपने कोल हुंदा जी कोई हल नहीं, की हुंदा जी कोई हल नहीं। उस चीज का जी अपने कोल कोई हल नहीं हुंदा, उस समीकरण का अपने कोल कोई भी हल जिहड़ा एग्जिस्ट नहीं करता, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन हुंदा है, ठीक है जी। उसका की अपने को नो सोल्यूशन हुंदा है। तो देखो जी अज आप सिर्फ थ्योरेटिकल करांगे, इन्हां दी जिहड़ी लेवल दे क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो च डिस्कस करांगे। हुण इन्हां नूं याद रखण दा तरीका दस दिंदी आ ते किवें अप्लाई करना है, एक अद्धा क्वेश्चन करके देख लेने आ। कल दी वीडियो दे अंदर जिहड़े जिन्ने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जिहड़े अपने कोल आ सकदे ने
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नाल ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ याद रखने का तरीका। देखो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखने का तरीका ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਔਰ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ ਫਾਈਨਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਔਰ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਿੰਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਈ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦ ਫਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਥ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਹੱਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਨੇ, ਜੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੀਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2x + 7y = 14, 9x + 5y = 16 ਦੇ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ? ਆਈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜੀ ਇਸਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। a1/a2 ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? a1 ਕੀ ਹੈ ਜੀ 2, a2 ਕੀ ਹੈ ਜੀ 9, b1 ਕੀ ਹੈ ਜੀ 7, b2 ਕੀ ਹੈ ਜੀ 5। 2/9 ਤੇ 7/5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, यूनिक सॉल्यूशन है। ਕੀ ਹੈ ਜੀ इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसका एक ही हल निकलेगा। दूजी आप ले लीजिए 3x - 4y = 7, 6x - 8y = -14। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। a1 ਕੀ ਹੈ ਜੀ 3, a2 ਕੀ ਹੈ ਜੀ 6, b1 ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ -4, b2 ਕੀ ਹੈ ਜੀ -8, c1 ਕੀ ਹੈ ਜੀ 7, c2 ਕੀ ਹੈ ਜੀ -14। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ 1/2, ਕੱਟਿਆ ਜੀ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ 1/2, ਕੱਟਿਆ ਜੀ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ -1/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, 1/2 ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ 1/2 ਦੇ, ਬਟ ਡਸ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ -1/2 ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, नो ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ नो ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ठीक है जी। इन्हों का अपने कोल की होएगा जी कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। थर्ड ले लिया जी 3x + 4y = 8, 5x + 20y - 40 = 0। इस दे पुछ लेने किन्ने हल हैं, तो वो एक तरीका करेंगे जी 15 लेना सीखे। 3/15 b1/b2 4/20 = c1/c2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 8 ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ 8 ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਜੇ ਮੈਂ 8 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ 8 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ -8, -8/-40। गलती नहीं करनी, काली नहीं करनी कि 3/5 बराबर 3/15 बराबर 4/20 बराबर 8/- -40 है जी। हाँ कट्टिया 1/5 आ गया जी, इनू कट्टिया 1/5 आ गया जी, इनू कट्टिया -1/5 आ गया। कोई हल नहीं, बस नहीं।
ध्यान रखना है कि केड़ी साइड है, सारी टर्म एक साइड होनी चाहिए, दोवें समीकरणों च एक पासे होनी चाहिए है। तो हुण देखो अपने कोल की है जी 1/5, आ भी की है जी 1/5, आ भी माइनस नाल माइनस कट के 1/5, तीनों बराबर ने तो की होणगे जी, सारियां दी मिलदी है आपस च बनदी है तो की होणगे साडे कोल होणगे जी अनेकां हल। ठीक है जी, अज दे लई इन्ना ही। अज आपां की कीता जी, इसदी थ्योरी डिस्कस कीती है। ठीक है जी, अज दी वीडियो दे अंदर आपां सिर्फ इसदी थ्योरी डिस्कस कीती है। कल दी वीडियो दे अंदर जेहड़े जी आपां इसदे क्वेश्चन डिस्कस करांगे, कल दी वीडियो दे अंदर आपां इसदे क्वेश्चन डिस्कस करांगे। थ्योरी दी एक चीज होर दसदी हां, मैनूं याद आ गया जी। देखो कुछ हुण जेहड़े सोल्यूशन है ना, इन्हां नाल रेखावां नूं कोरिलेट करदे आपां, रेखावां नूं। देखो जे a1/a2 does not equal b1/b2 तो की हुंदा जी एक हल। जे एक हल है तो रेखावां किस तरह दी बनणगियां जी, काटवीं रेखा बनणगियां। की बनणगियां जी, काटवीं रेखावां बनणगियां। इन्हां दे ग्राफ बारे डिस्कस कर लेंदे आ, हल्लां नाल रिलेटेड ग्राफ, कि ग्राफ किस तरह बनेगा, पेपर से ग्राफ नाल रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। जे एक हल है तो की होएगा जी, एक बिंदु ते कटेगी तो उसनूं की कहांगे, काटवीं रेखा। याद रखने दी ट्रिक दसदी हां तुहानूं, एक हल है एक बिंदु ते कटेगी, एक बिंदु ते कौन कटदी है, काटवीं रेखा। ठीक है जी। दूसरा सी a1/a2 इक्वल है जी b1/b2 इक्वल है जी c1/c2। की सी अनेका हल सी, एक हल है तो एक बिंदु ते कटेगी, अनेका हल है तो अनेका बिंदु ते कटेगी। तो वह हो जानियां जी संपाती रेखावां, एक दूजे नूं अनेका बिंदु ते जे आपस में मिलन गया तो की होणगियां जी संपाती रेखावां। एक रेखा इस दे सारे बिंदुओं ते इस दे ऊपर ही दूजी रेखा आ गई, दोवें रेखा इकट्ठियां हो गया तो की हो गया जी संपाती रेखावां हो रही है। केड़ी हो गया जी, संपाती रेखावां, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है जी। याद रखना तरीका देखो कितना सौखा है, एक बिंदु ते कट्टी, मतलब एक हल है एक बिंदु ते कटेगी, अनेका हल है अनेका बिंदुओं ते कटेगी। जे कोई हल नहीं है, तीसरी कंडीशन की सी अपने कोल, कोई हल नहीं है वाली, a1/a2 बराबर है जी b1/b2 बराबर नहीं है जी c1/c2 दे, तो की सी जी अपने कोल कोई हल नहीं है। की सी जी कोई हल नहीं है। जे कोई हल नहीं है तो कोई बिंदु ते नहीं कटेगी, किसी बिंदु ते नहीं कटेगी। जदों कोई दो रेखावां आपस से किसी बिंदु ते नहीं कटदियां तो की हुंदियां ने अपने कोल, समांतर रेखावां हुंदियां ने जी। की हुंदियां ने, समांतर रेखावां, पैरेलल लाइंस। तो जे कोई हल नहीं है, कोई बिंदु ते नहीं कटेगी तो की होणगियां, समांतर रेखावां होणगियां। उन्हां दा ग्राफ की होएगा जी, समांतर रेखा होवेगा। तो आ सी जी थ्योरेटिकल वर्क अपने लीनियर इक्वेशन ते पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दा। ठीक है जी, अज दे लई इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो नू लाइक शेयर ते चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो जी। जेडे भी तुहानू डाउट है, कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन से जरूर पा के पूछा करो जी। कमेंट सेक्शन के अंदर तुसी जेडे कमेंट करके अपनी सारी क्वेरीज, कोई भी चीज तुसी चाहते हो, चेंज चाहते हो किसी सी चीज के अंदर, तो वो तुसी कमेंट सेक्शन में कमेंट करया करो। तुहाडे कमेंट के अकॉर्डिंग तुहानू जिहड़ी है जो उसका जवाब जिहड़ा जरूर मिलेगा जी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो नू लाइक शेयर ते चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो।